Hi everyone, welcome to CPP Valley. So today we will learn about self-joining threads, and so let us start. So let me quickly write a small program using thread. So I have this function make sound, and it will just make the sound something. Okay, let's include the headers, namespaces. Okay, now let us create a thread. So we have thread t1, and we call make sound, and we do t1 dot join, right? So we are using thread from C++11. So let us include thread. Okay, so we have included the header file for thread. Now it is printing this sound. So this is sound 1. Okay, and now if you remove this t1 dot join, let us see what happens. So if you remove this join, ये हमें एक error देता है and program gets terminated. So it raise an exception and it raise a std terminate. This was our main program. Okay, so whenever you launch your program and it becomes a process, so it is running on a thread. Okay, that is called main thread. Okay, now inside this main thread you had a thread t1. Okay, so now this will create a new thread. So at this point it will create a new child thread. So this is your thread t1, and this is called for point. So you created a new thread, means this thread will share the global resources, it will share the heap resources, but it will not share the stack resources. So this thread will get its own stack space. This is thread stack. Okay, and this stack space is very local to t1. Okay, so if you create a new thread t2, then this stack will not be shared among the t1 and t2. So t2 will get its own stack. Okay. Okay, now what happens, let's say you sorry, you initiated a thread and then you did not join, meaning you did not wait for the thread to complete. Okay, and it may happen that while thread t1 was executing something, the main thread got finished. Okay, so your main function got finished, but your thread was still executing. Okay, now you had this thread t1, right, and this t1 which is a stack variable. So in your main function we had t1, right? So t1 will get some memory inside the main stack. So if this is the stack for main, and here you will have something like t2, and since this main stack is an automatic memory, meaning whenever it goes out of scope, stack unwinding will happen and this t1 will get destroyed. ठीक है, and we know that whenever a object is destroyed उसका destructor run होता है. ठीक है, that is deterministic. अब जब t1 का destructor run होगा, then in the destructor of t1 there is some implementation of type, यहाँ पे मैं लिखता हूँ. So let us say this is the destructor of t1. तो t1 का टाइप क्या है? t1 का टाइप इज std thread. अब हम देख रहे हैं कि अच्छा थ्रेड में जो इसका कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है, वो कैसा दिखता होगा. तो जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कुछ ऐसा है कि इफ़ जॉइनेबल, मतलब कि अगर थ्रेड जॉइनेबल है तो तुम क्या करो, यू डू दिस थिंग, यू डू std terminate. Okay, and in our case what is happening, whenever this t1 will get out of scope, this terminate signal will be invoked, meaning प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि दिस इज़ द वेरी बिहेवियर ऑफ थ्रेड डिस्ट्रक्टर. ठीक है, सो व्हाट आर द रीजन्स कि जो C++ में जिन्होंने भी बनाया है, वाई डिड ही कीप इट लाइक दिस. सो इट कैन हैव डिफरेंट रीजन्स. फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर तुमने थ्रेड को, प्रोग्राम को तुमने अगर टर्मिनेट नहीं किया, तो ये थ्रेड बैकग्राउंड में बी इट मे कीप ऑन रनिंग, बट
जो T1 है ये तो मेमोरी से चला गया, ये तो स्टैक से चला गया है ना. इट मे हैपन कि दिस वॉज यूजिंग सम रिसोर्स, this thread, but maybe that resource might have been freed already. Okay, so and there might be some objects that would have been freed. Okay, so that is one reason कि आप thread को background में आप चला रहे हो, but thread का object itself stack पे नहीं है, कुछ memories allocate हुए होंगे जो कि free हो चुके होंगे, right? So there can be different scenarios, and one more reason, let's say कि आपने, now the question is कि ऐसा होता क्यों है? Whoever wrote the implementation of thread, why did he decide कि whenever the program goes out of scope and the thread was still running, it will invoke a std terminate. So let us try to understand. अगर std terminate नहीं लिखा होता deconstructor में तो क्या लिखा हो सकता था? There could have been two scenarios. Wait a second. So the first scenario is कि वो अपने destructor में कुछ ऐसा लिख देते, std sorry, if joinable then t1 dot join. एक तो ऐसा लिख सकते थे कि देख लो अगर थ्रेड का डिकंस्ट्रक्टर चला है तो मैं चेक करूँगा कि क्या वो जॉइनेबल है, अगर वो जॉइनेबल है तो मैं उसे ज्वाइन कर दूंगा. एक अप्रोच तो ये था. दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि मैं थ्रेड को डिटैच कर दूँ. ठीक है, मतलब जब डिकंस्ट्रक्टर चला थ्रेड ऑब्जेक्ट का एंड मैंने देखा कि ये जॉइनेबल है तो मैं क्या करूँगा, इसको डिटैच कर दूंगा. मतलब कि नाउ द थ्रेड कैन रन इंडिपेंडेंट ऑफ द मेन थ्रेड. तो दीज टू अप्रोचेज दिमाग में आएंगे, राइट, कि हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं. अब देखो, अगर तुमने डिकंस्ट्रक्टर में टी डॉट जॉइन लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि वेन एवर यू आर क्रिएटिंग अ थ्रेड एंड यू आर नॉट एक्सप्लिसिटली राइटिंग t1 डॉट जॉइन. ठीक है, मतलब तुमने नहीं लिखा है t1 डॉट जॉइन, सो दिस जॉइन इज नॉट इन योर कंट्रोल, इट हैज़ नॉट बीन इंसर्टेड बाई कंपाइलर बाई योर डिसीजन. एंड नाउ इट मे हैपन दैट t1 थ्रेड जिस फंक्शन को रन कर रहा था, लेट्स से उसे रन होने में टाइम लगेगा. ठीक है, उसको रन होने में टाइम लगेगा, बट तुम्हारा मेन थ्रेड खत्म हो चुका है. जैसे ही मेन थ्रेड स्टैक एंड वाइंड होगा, तुम्हारा डिस्ट्रक्टर चलेगा, डिस्ट्रक्टर में लिखा रहेगा t1 डॉट जॉइन. इसका मतलब तुमने नहीं लिखा है t1 डॉट जॉइन, बट स्टिल वो वेट करेगा तुम्हारे फंक्शन का एंड होने का, तुम्हारे थ्रेड फंक्शन के एंड होने का. सो इट इज़ अबाउट कंट्रोल. यू आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ योर थ्रेड, राइट. यू आर नॉट टेलिंग द कंपाइलर टू वेट, रादर द कंपाइलर इटसेल्फ इज वेटिंग. सो यहाँ पे क्या है, कंट्रोल का इशू है कि आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो. ठीक है, t1 डॉट डिटैच में क्या हो जाएगा, लेट्स से कि आप जिस फंक्शन से आपने जहाँ पे कॉल किया था थ्रेड को, अब जब ये यहाँ पर आएगा हमारा स्कोप, तब ऑटोमेटिकली इसका डिस्ट्रक्टर चलेगा और हम बोल रहे हैं कि चलो ज्वाइन तो हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा कंट्रोलेबिलिटी का इशू आ रहा है, तो क्यों नहीं हम डिटैच रख दें कि अगर मेरा थ्रेड अभी तक ज्वाइनेबल है और मेन फंक्शन खत्म हो गया तो मैं उसको डिटैच कर देता हूँ, वो बैकग्राउंड में चलते रहेगा. बट इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि नाउ लेट्स से देयर मे बी सम वेरिएबल्स which you may have passed in your function while invoking the thread. Now this variable is out of scope, right? The value stored in those variables are stale now. So now, and this create a inconsistent state, right? तो डिटैच अगर आप करोगे तो वो वेरिएबल रहेंगे नहीं, देन ऑब्वियसली द फंक्शन द कैलकुलेशन इज नॉट गोइंग टू बी कंसिस्टेंट. ये दूसरा इशू हो गया. तो अगर आप ज्वाइन करोगे तो यू लूज कंट्रोल, अगर आप डिटैच करोगे देन यू कैन गेट इनटू अ लॉट ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू मेमोरीज. ओके, एंड बाय लुकिंग एट दीज थिंग्स, C++ standard enforces that whenever a thread is deconstructed and it is still joinable, then we will terminate. Okay, so that is the behavior that they have implemented. So they have this terminate in their destructor. Okay, now let us understand how can we make our thread itself joinable. ठीक है, तो what do we want? We want कि जब हमारा thread ये deconstruct हो तो t1 dot join automatic चल जाए, and this time we are going to write this t1 dot join, not the C++ standard thread library is writing. We are writing this. So as a matter of choice, we are writing this. Okay, so so it means that कि हमें कोई एक कस्टम सा क्लास बनाना होगा और उस कस्टम से क्लास से इस थ्रेड को हम रैप करा लेंगे, राइट. एंड उस कस्टम क्लास का हम जब डिस्ट्रक्टर बनाएंगे उसमें हम लिख देंगे ये जॉइनेबल वाला, राइट. तो इसका हम देखते हैं क्या स्ट्रक्चर होने वाला है. लेट्स सी दैट वी क्रिएट अ क्लास, लेट्स से जॉइनिंग थ्रेड. ठीक है, अब इसमें हम क्या स्टोर करने वाले हैं, इसमें हम थ्रेड को स्टोर करने वाले हैं. ठीक है, ये हो गया मेरा प्राइवेट मेंबर विच इज़ ए थ्रेड. उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं, है ना. इसका कंस्ट्रक्टर होगा, कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, t1 को असाइन करेंगे. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर लिखते हैं कि जॉइनिंग थ्रेड एंड इट विल टेक अ थ्रेड. सो थ्रेड
लेट अस कॉल दिस ऑल्सो, लेट अस से T1, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा T है उसमें हम इसे मूव कर देंगे, मूव द T1, हो गया, ठीक। ये तो हमने इसका कंस्ट्रक्टर लिख दिया कि हम एक थ्रेड लेंगे एंड उस जो थ्रेड का वैल्यू होगा उसे मूव कर देंगे इस थ्रेड में, ठीक है। इसका मतलब हम अब जॉइनिंग थ्रेड जो एक क्लास है, इट विल स्टोर द स्टेट ऑफ थ्रेड, ठीक है। अब इसका हम डीकंस्ट्रक्टर देखते हैं। अब डीकंस्ट्रक्टर में हम बोल रहे हैं कि अगर थ्रेड अभी भी जॉइनेबल है तो तुम उसको ज्वाइन करो, मतलब इफ टी डॉट जॉइनेबल देन यू ज्वाइन इट, ठीक, ये हो गया, राइट। अब तुम अगर इसे लेट्स से यू हैड अ मेन फंक्शन, राइट, एंड यू क्रिएटेड joining thread jt, let's say, and you passed thread and let's say the function you wanted to run. So हमारे केस में क्या था, make sound, ठीक है। मतलब हम ज्वाइनिंग थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसमें पास कर दे रहे हैं एक टेम्पररी थ्रेड, ठीक है। अगर सिंस दिस इज टेम्पररी, सिंस दिस इज टेम्पररी, ये क्या करेगा, C++ क्या करेगा कि rather than creating a copy of this thread inside this constructor, तो यहाँ पे एक कॉपी नहीं बनेगा, rather इसका एक टेम्पररी कॉपी बनेगा, which I think you all might know. So यहाँ पे एक R वैल्यू क्रिएट हो जाएगा, R वैल्यू, ठीक है। तो and what is the type of R value? This is the type of R value. So you know, right, double ampersand से we denote the R value and a single ampersand is L value. Okay. Now this is a temporary, meaning ये एक R value है, ठीक है। So जब ये एक्सप्रेशन चलेगा तो हम क्या कर रहे हैं कि JT के कंस्ट्रक्टर में, मतलब जॉइनिंग थ्रेड के कंस्ट्रक्टर में तुम इसको पास कर दो, इस R वैल्यू को। तो चलो ठीक है, यहाँ पे R वैल्यू आ गया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम पास बाई वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये भी तो देखो ना, इसका टाइप क्या है, इसका टाइप थ्रेड है, एंड थ्रेड जो क्लास है उसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि थ्रेड इज़ नॉन कॉपीएबल, मतलब कि जो थ्रेड का जो भी इंप्लीमेंटेशन होगा जहाँ पे भी, उसके क्लास में अगर आप जाके देखोगे ना तो उसका जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा ना वो डिलीटेड होगा, या फिर उसका जो कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर होगा वो भी डिलीटेड होगा। इसका मतलब थ्रेड को कॉपी तो आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। इसका मतलब थ्रेड को आप मूव ही कर सकते हो बस, ठीक है। अब मैंने यहाँ से ऑलरेडी राइट R वैल्यू भेज चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा, ठीक है, थ्रेड कंपाइलर देखा इसका टाइप थ्रेड है, तो रादर देन टेकिंग अ कॉपी इट विल डू अ मूव ऑपरेशन, मतलब यहाँ पे रफली कंपाइलर विल डू, सॉरी, दिस T1 इज इक्वल टू std move whatever the let's say the temp thread that we got, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे this just for your understanding this will not happen, ठीक है। Since T1 is a thread of type thread and thread does not have a copy constructor, does not have a copy assignment operator, rather it has a move, so compiler will make it like that you are moving from a temp to a thread object. This is basically a L value, ठीक है। So that is there. So in T1 we have this temporary thread. Now what we do, we again use this T1 to move the value to T, because T is our original thread, है ना। हमारा जो ज्वाइनिंग थ्रेड है उसके अंदर जो थ्रेड का स्टेट है वो कौन स्टोर कर रहा है, T स्टोर कर रहा है। तो हमने फिर से क्या किया, हमने फिर से इसको मूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली मूव लिखा है क्योंकि अब यहाँ पे जो T1 है ना ये एक L वैल्यू है, यहाँ पे जो टेम्प्रेरी था वो एक R वैल्यू होता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक T1 है विच इज़ अ वेरिएबल, इसका एक आइडेंटिटी है, ठीक है ना। सो इट इज़ अ L वैल्यू। अब हमने क्या किया, हमने T1 में, सॉरी T में T1 को असाइन करने के लिए T1 को पहले हमने एक R वैल्यू बना दिया। R वैल्यू कैसे बनता है, तो हम मूव लगा देते हैं, मूव लगाने से क्या होगा, T1 का R वैल्यू बन गया। फिर हमने क्या किया, इस T में कॉपी कर दिया, बेसिकली मूव कर दिया, ठीक है। अब जब ये लाइन चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ST का स्कोप खत्म हो जाएगा। ST का जैसे ही स्कोप खत्म होगा ST का डीकंस्ट्रक्टर चल जाएगा। डीकंस्ट्रक्टर चल जाएगा, इसका मतलब है ये चेक करेगा कि इज़ T जॉइनेबल, हाँ ये तो जॉइनेबल है, तो इसे ज्वाइन कर दो, इसका मतलब थ्रेड ज्वाइन हो गया है। अब ये कम्प्लीटली रन हो जाएगा, है ना, इसके नीचे प्रोग्राम आ जाएगा एंड आपका थ्रेड ज्वाइन हो चुका है, इसका मतलब अब टर्मिनेट नहीं चलेगा, ठीक है। सो वी क्रिएटेड अ रैपर ऑफ अ थ्रेड एंड वी एडेड इन द डिस्ट्रक्टर द ज्वाइन। नाउ दिस इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन C++20, तो C++20 में दिस इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। सो वी हैव J थ्रेड,
ठीक है. J thread are basically joining threads, and so now if you create a J thread, let's say JT1, ठीक है, and in that you pass some function, so let's say make sound. अब क्या होगा कि जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा तो J थ्रेड का डिकंस्ट्रक्टर चलेगा और वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन लिख दिया है. सो दिस इज C++20 फीचर. लेकिन अगर आप यू आर वर्किंग प्री C++20, देन ईदर यू हैंडल ज्वाइन or you detach, or you in the destructor only you write the join. So this was a simple concept, and ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. आप इसे एक बार रन करके देख लेना अपना कस्टम क्लास बना के, उसके डिस्ट्रक्टर में ये सब लिख के देख लेना. योर थ्रेड शुड बी एबल टू ज्वाइन, देन यू शुड ट्राई यूजिंग J thread, and yeah, this will complete your exercise. Okay, thank you.